Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading the set. So a 12-seater 7D movie show has seating arrangement of 3 chairs in each row. Right, so 12 seaters and there are 3 chairs, so there's basically 4 rows. The first row is closest to the screen and the fourth row is farthest from the screen as compared to the other rows. The movie ticket prices for a male is rupees 600, while for a female it is rupees 500. If anyone has any college or school or college ID, then he or she gets a discount of 20% at the rate applicable, right? So 600 and 500 pay. If any person has a ID, they will get a 20% flat discount, right? So that 600 will eventually become what? 80%, that is 480, and 500 will become what? 400, right? The movie ticket prices for children below age 3 is rupees 250. The 7 p.m. show tickets were purchased by Barry M. This is actually represented as the male, for his family of 12 members including him. So there are a total of 12 members and why 12 members are being seated in this 12-seater movie show theater, right? The other family members are Sarah, Priya, Laura, Sheldon, Leonard, Penny, Leslie, Bernadette, Emily, Jenny and Amy, right? So Big Bang Theory, it is all going on. So Amy is the child of age 2 years. Among all, Sheldon, Leonard, Penny, Leslie, Bernadette, Emily and Jenny have student ID. So if I closely look the names first, so the alphabets are actually getting repeated. So maybe I'll have to write the full names, right? They could have given A, B, C, D, N. But anyways, we'll write the names and we have some additional conditions. So this seems to me like a seating arrangement problem, complex seating arrangement. How complex, we'll know as we start solving this. So let's start solving this part. The questions should be pretty straightforward. I have skipped the options, obviously. The names were there in the options. So we'll write the names, obviously, right? Okay, let's start solving this. How do I start? So first thing I'll do is write all the names for my clarity purposes, and then I'll write the ticket price for them, because that part is clear, who is a male and who is a female, and that part is also given who has an ID. So what fees will be they, what will they be paying, right? So I'll start with the first one. This is Barry, right? Barry is the first person. So Barry is a male. Then I'll list down the males. There were very few males. I know Sheldon, Leonard, and no one else. So Sheldon and Leonard. So Sheldon, male. Leonard is also a male. Then others are female. So Sarah, Priya, then Laura, Penny, Leslie. I don't remember who was Laura in this. Anyways, Laura is a female. Penny, Leslie, right? Bernadette, then Emily F, right? And then there is this Jenny also, right? And finally Amy is basically a child of 2 years. I'll write C. Now I can also go ahead and write all the fees they will be paying. So Barry will be paying what? Who has that ID? First I'll look out for that. So ID among all, Sheldon, Leonard. So out of the males, only Sheldon and Leonard have ID. So Barry will pay that 600, while Sheldon and Leonard will have a 20% discount applicable. 600 ka 20%, they will be paying 480 each. Then Sarah, Priya. So who of the females have the IDs? So starting from Penny, Leslie, Bernadette, Emily and Jenny. So are they in order? Yes, Penny, Leslie, Bernadette, Emmy and Jenny. So they will be paying what? 20% less than 500. So they will be paying 400 each. 400 and 400, while the rest of the females will obviously be paying the full amount, that is 500 and 500. And this child, obviously he or she will not have a student ID. So
That child of 2 years will pay what? That amount was given as 250. Right, so that is the first part. I'll be doing this in an exam scenario, obviously. Now, how do I start? So there is this 12 seater. So I'll need 12 spaces, right? 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3. I'll make one more arrangement in case I need to figure this out. I obviously will need spaces, and let's put this. Okay, let's start reading all the statements one by one and get the maximum crux out of these statements. So let's start with the first statement. Barry was sitting at the rightmost end of the second row. So I'll use this case. In case I need the second case, I'll draw that here. So Barry was sitting at the rightmost end of the second row. Rightmost end of the second row. So this has to be Barry. And we know Barry is going to pay 600. So that is 600. And the ticket price of the person sitting behind him was either 400 or 500. So this is either 400 or 500. Who is there? We don't know. So we have taken basically care of this first statement. Now next part, Sarah was sitting just ahead of Penny. So I cannot put that down, but I'll just rewrite this here. So I don't need to go back to that statement again and again. Sarah was sitting just ahead of Penny. So Sarah just behind would be Penny. And Penny, who was sitting to the immediate left of Leonard. So Penny is sitting to the immediate left of Leonard. So what is the amount they're actually paying? I can also write that down. Sarah is 500. Penny was 400. And Leonard what? 480. Yes, 480. So they have to come in this particular order. Right, so this statement is also done because we have already kept this here, right? So I can keep crossing out the statements. Then third point, Penny was sitting between Bernadette and Laura in the same row. So they will occupy the 3 positions in a single row, where Priya is between Bernadette and Laura, right? So we don't know the order, right? Don't assume that Bernadette is actually to the left. It can either be Bernadette or it can be Laura. So we can write both the cases, Bernadette, or it can be Laura, or it can be Laura and the other person could be Bernadette, right? Now, what is the amount they are actually paying? So Priya is actually paying 500, that is fixed. Laura and Bernadette are actually paying different amounts. So Bernadette is 400, while Laura is actually paying that full 500. So the order would be 400. And in case Laura is there, she'll be paying 500, and Laura is paying 500. And in case Bernadette is there, so she'll be paying 400. So that is the amount they have, right? This statement is also done because we have put this down in a simple order. Now the ticket price of the person sitting in the second and third row left corner seats are the same. Second and third row left corner seats. So basically these 2 seats. In दोनों value, in दोनों tickets का actual price same है. Now can I actually go ahead and figure out what can be that equal value? So let's start with the possibilities. देखो, सबसे पहले if I closely look at all the values we have here, so 600 is one time. So 600 cannot be there, right? क्योंकि we need 2 values already. 600 यहाँ place भी है, वो तो वैसे भी नहीं आ सकता. So 600 cannot be that equal value. Also ME, that's 250 is also one value. It cannot be there. So I'm left with what? 480, 500 and 400. 3 possible values. Now let's check what can be there. So if I closely look, 480. Now ये condition में अपने को closely दिख रहा था कि Leonard cannot be to the extreme left, right? Anyhow, because Leonard के left में हमेशा Penny आएगा. So these 2 values cannot be 480 because 480 की 2 ही choices हैं. Either it has to be Sheldon and Leonard, right? So Sheldon and Leonard place कर नहीं पाओगे. You can place Sheldon, but you cannot place Leonard because Leonard के left में Penny आएगा. So that cannot be 480 as well. So either it has to be 500 or it has to be 400. There are 2 possibilities, right? That is first conclusion that comes to my mind. Now let's check, can it be 500, right? Can it be 500? I'll check for 500 because the 500 values are limited, right? There are only 3 500. That is the reason I'm starting with 500, checking about 500. Now let's say this is 500, this is 500, and this is also 500. Now
हु कैन बी दीज टू पीपल, ये 500 वाले हो कौन सकते हैं? तो अगेन 500 वाले दो पर्सन कौन से हो सकते हैं? इफ आई गो एड एंड चेक, सी प्रिया इज वन ऑफ देम, प्रिया का 500 है, बट प्रिया विल ऑलवेज बी देयर इन द मिडिल सीट बिकॉज Priya has to be surrounded by Bernadette and Laura on either sides. So Priya cannot be there. So if Priya is not one of these 500, the other two 500 candidates, that is Laura and Sarah, have to be there. So these two people have to be Sarah and Laura. Now what can be their order? Now Sarah के just नीचे Penny आनी चाहिए. So Sarah cannot be this because she should have Penny behind her. But Penny doesn't have 500, right? It has to be what? Laura. So Sarah cannot be this. So if let's say 500 has to be there, so Sarah will be here and Laura will be there, right? Laura. Now, can this be possible? That is the first thing we need to notice. This is actually not going to be our required scenario, because if Laura is here, so this has to be also taken care of. Laura, Priya and Bernadette. So Laura, Priya and Bernadette had to be there, but there is Barry. That means there is a contradiction which we have here, and hence I can safely say these two positions should not have a 500 wala person. These two positions will have sorry, these two positions will have 400. I hope this part is clear. So we can actually go ahead and fix. These two are 400 each, right? That is clear till now. Okay, now we have also taken care of this fourth statement. Okay, let's move forward to the fifth statement. The ticket price of the person sitting in the middle of the first row. The ticket price of the person sitting in the middle of the first row, this value is more than that of sitting in the rightmost corner of the fourth row. So this value has to be greater than this value. Now this actually is not favorable to me right now, this statement, because it can have multiple cases, right? There are too many possibilities of this being greater than this. You can have multiple cases, so maybe I'll keep this statement on hold for now, right? We cannot actually represent this also, so let's keep this on hold. Remember that. Now sixth statement, Emily and Sheldon were sitting in the same row and Emily was to the right of Sheldon. Now this is very precise. Emily and Sheldon have to be in the same row and Emily was to the right of Sheldon. So Sheldon and उसके right में आएगा Emily, right? But this doesn't mean कि Emily is to the immediate right of Sheldon. They have to be in the same row. Emily is to the right of Sheldon, but there can be a person. There can be a person. There cannot be a person. There can be a person. Both cases are possible, right? So Sheldon इनका amounts लिख लेते हैं because जब भी place करेंगे तो not need this table. So Sheldon is actually paying that 480 वाला part, and Emily is that person who is actually paying this 400. Right? We can keep this, but we cannot place this right now. Now where do I start off with? इसके तो मेरे को options multiple दिख रहे हैं, right? इसको check करते हैं. We haven't used this. We just wrote this. Now Sarah, उसके नीचे Penny and उसके right में Leonard. Where these three people can be seated? Let's check. So Sarah, Penny and Leonard, right? So can this be Sarah? Yes, 500. Penny का 400 satisfy हो जाएगा, Leonard ये हो जाएगा. This is definitely possible, right? Can this be Sarah, Penny, Leonard? No, Barry is right. और इधर तो चेक करने का मतलब ही नहीं है ना. Sarah, Penny इस रो में कभी भी नहीं आ सकते, इस कॉलम में सॉरी कभी भी नहीं आ सकते, बिकॉज Leonard उसके राइट में जाएगा. सो इन्हीं दोनों कॉलम में चेक करेंगे. तो दिस वॉज वन पॉसिबिलिटी. यहाँ पे नहीं आ पा रहा था. देन 400 ये नहीं हो सकता बिकॉज सारा हैज़ टू गिव अ 500. तो यहाँ पे सारा नहीं, यहाँ पे सारा नहीं, ऑब्वियसली यहाँ सारा नहीं बिकॉज उसके पीछे पेनी नहीं. तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है. इधर इस वाले कॉलम में अगर मैं सारा को रखूँगा, सारा को मैं यहाँ नहीं रख सकता था बिकॉज लेनर्ड यहाँ नहीं आ सकता था. व्हाट अबाउट दिस? सारा अगर यहाँ पे है तो पेनी कुड बी हियर, बट लेनर्ड का 480 आना चाहिए. बट दिस, यही सब कंडीशन इसीलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला था कि बैरी के पीछे जो भी है आइदर इट हैज़ टू बी 400 और 500. सो अगेन लेनर्ड कैन नॉट बी हियर, सो सारा कैन नॉट हैव दिस प्लेस हियर. सारा कैन बी हियर. सारा, पेनी
and Leonard. तीनों वैल्यूज रिमेनिंग है. We can have two cases. Now I'll use the second scenario. Let's not get this dirty. तो इसमें हम क्या डालते हैं? This is 400. This is very small. I'll just draw this again. Yes. So I'll just rewrite this case again and उसमें फिर हम दो possibilities बना लेंगे. This is how I solve this. So 400. This is also 400. This was Barry with 600. This was either 400 or 500. I don't know who that person is. Right now, let's make the two cases. Sarah, Penny, and Leonard. So एक case ये बन रहा था. Sarah with 500. This has to be Penny with 400, and this has to be Leonard with 480. And इस केस में this has to be Sarah with 500. This has to be Penny has to get 400, and finally this has to be Leonard, and this has to be 480. Right, this is the second scenario with us. फाइन, लेट्स नाउ प्रोसीड. यहाँ तक अपना पार्ट क्लियर है. नाउ अब हम थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं कि बाकी लोग कहाँ पे जा सकते हैं. जैसे ये वाले सिनेरियो में ये वाला आपका पूरा कॉलम, सॉरी ये वाला पूरा रो बचा हुआ है. जैसे ये वाला जो केस है, ये वाला, इसमें प्रिया बीच में आना चाहिए. प्रिया के दोनों साइड बर्नाडेट एंड लॉरा होना चाहिए. इस पर्टिकुलर केस में अगर आप नोटिस करो, इस पर्टिकुलर केस में प्रिया को अगर बीच में होना है, देखो प्रिया यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज बैरी से एक ऑक्यूपाइड है. यहाँ पे सारा बीच में, यहाँ पे पेनी बीच में है. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाले जो तीन लोग हैं उनको अगर प्लेस करना है तो हम यहीं पे प्लेस कर सकते हैं. तो प्रिया विल बी देयर, राइट. प्रिया का कितना होगा आपका 500 होगा. प्रिया का 500 होगा. और इन दोनों प्लेसेस पे बर्नाडेट एंड लॉरा विल बी देयर. बर्नाडेट एंड लॉरा, राइट. अब दोनों को हम लिख सकते हैं, बट एक बार हम वापस चीज़ें चेक करते हैं कि बाकी सब सेटिस्फाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, अगर मैंने प्रिया को यहाँ पे रखा बिकॉज दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, तो बर्नाडेट एंड लॉरा इधर आ जाएंगे. मुझे ये भी प्लेस करना है शेल्डन के राइट में, क्या, एमिली. अब शेल्डन का 480 आना है, तो वो कहाँ प्लेस हो सकता है. तो शेल्डन के राइट में एमिली. अब शेल्डन यहाँ तो है नहीं, 400 है, तो शेल्डन यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज एमिली की जगह नहीं है. यहाँ पे भी शेल्डन वाला आ नहीं सकता. तो शेल्डन के लिए फिर तो इस केस में आपको जगह ही नहीं मिलेगी बिकॉज शेल्डन का फिर आपका क्या आना चाहिए था, 480. तो इस रो में कहीं नहीं आ सकता, इस रो में भी कहीं नहीं आ सकता, इस रो में भी नहीं आ सकता बिकॉज शेल्डन अगर 480 है तो उसके राइट में एमिली के लिए स्पेस नहीं बचेगी. सो दिस केस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल एंटायरली, राइट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे अभी तक दिक्कत है, थोड़ा सा पॉज करके वापस कनेक्ट करने की कोशिश करना, राइट. आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंटायर केस, राइट, बिकॉज दिस केस इज नॉट पॉसिबल. तो ये जो हमने एक्चुअली में केस बनाया था सारा, पेनी, लेनर्ड, ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा बिकॉज प्रिया को जब प्लेस करोगे तो ये पूरी रो ऑक्यूपाई हो जाएगी. तो शेल्डन के लिए एक्चुअली स्पेस आपको नहीं मिलेगा. सो आई विल रिमूव दिस. मे बी आई नीड टू मेक अदर केसेस, बट ये वाला केस तो ऑब्वियसली नहीं है. So we'll move on to the first part. Okay, let's move to this part. अब ये वाला केस फिक्स है, तो अगर इसके बियॉन्ड भी अगर कोई केस निकल के आएगा ना, तो एटलीस्ट ये वाला पार्ट मैं पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दूंगा, राइट. अभी नहीं पता है एक्चुअली में, चेक करते हैं क्या बन रहा है. तो अब अगर मैं नोटिस करूं, जैसे ये वाला पार्ट अगर फिक्स्ड है, तो अब ये तीनों को प्लेस करने की जगह कहाँ पे मिलेगी. तो अब यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो प्रिया मिडिल में बर्नाडेट एंड लॉरा है, देखो यहाँ तो नहीं हो सकता. ये यहाँ पे हो सकता है, ये फोर्थ रो में भी हो सकता है. यहाँ पे इसलिए हो सकता है बिकॉज 400 ऑब्वियसली मैं बर्नाडेट का रख लूँगा, प्रिया का 500 रख लूँगा,
और फिर लॉरा का 500 आना चाहिए, तो 500 की तो चॉइस है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ सकता है। फोर्थ रो में ऑब्वियसली आ सकता है, तो इसीलिए अब मैं ये सेकंड वाला केस में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यूज़ करने के लिए मैं पहले तो ये पूरा जितना फिक्स है, ये सब चीज़ें फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये वाला पार्ट हम उतार लेते हैं पूरा पूरा। सो दिस हैज़ टू बी सारा विथ 500, दिस इज पेनी विथ 400, दिस इज लेनर्ड with 480, this is Barry with 600, this is 400, ये भी 400 and 500, we don't know who is there. So now we can go ahead and make these two cases, right? Let's use a different color now. तो अब दो केसेस कौन से बनाऊंगा मैं, यही वाले, ये तीनों को प्लेस करते हैं। एक बार हम यहाँ प्लेस कर देंगे और एक बार लास्ट रो में प्लेस कर देंगे। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे प्लेस करा तो प्रिया मिडिल में है, दिस हैज़ टू बी प्रिया। प्रिया का कितना हो जाएगा 500। अब ये 400 है तो फिर ये डेफिनेटली बर्नाडेट ही हुई, दिस इज बर्नाडेट। तो फिर यहाँ पे 400 है तो फिर यहाँ पे आपका बर्नाडेट के साथ यहाँ पे लॉरा आनी पड़ेगी, एंड बिकॉज यहाँ पे लॉरा है तो लॉरा का कितना होता है 500 होता है। तो 500 अगर है तो यहाँ पे 400 नहीं हुआ, तो आई कैन रिमूव दिस, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दिस हैज़ टू बी 500। नाउ दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में प्रिया अगेन ये वहाँ पे मिडिल में है, प्रिया इज विथ 500। अब यहाँ पे दोनों केसेस में चेक करना पड़ेगा कि हम क्या रख सकते हैं। नाउ क्या मैं दोनों पॉसिबिलिटी रख सकता हूँ? देखो अगर यहाँ पे लॉरा है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, शायद ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये 7 पॉइंट, आई डेंट रीड दिस अलाउड, आई मे बी यू वुड हैव नोटिस्ड। तो एमी डिड नॉट सिट इन द सेम कॉलम और रो एज जेनी। अच्छा ठीक है, ये हमारा अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ओके बट ये वाला स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा था ना, ये वाला, येस दैट पार्ट, कि ये वाला जो वैल्यू है फर्स्ट रो का जो मिडिल सीट है, इसका जो वैल्यू आएगा वो लास्ट रो के राइट मोस्ट वाले से ग्रेटर आना चाहिए, दिस फिफ्थ वाला पार्ट, राइट? हाँ, जिसको हमने सर्कल करा था, राइट, मेमोरीज। तो दिस पार्ट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन दिस पार्ट। अच्छा, क्या ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएगा? तो जैसे प्रिया का अगर मैंने यहाँ पे 500 रखा ना, बस मेरे को चेक करना है बर्नाडेट एंड लॉरा का ऑर्डर क्या आएगा। तो अगर यहाँ पे लॉरा है 500 के साथ आएगी लॉरा, 500 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। 500 से एक्चुअली ग्रेटर सिर्फ एक ही नंबर था, दैट इज बैरी का। तो 600 तो आपके पास है नहीं, 500 से ऊपर कोई नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स फिर यहाँ पे 500 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? बर्नाडेट का नंबर आएगा, यहाँ पे बर्नाडेट आएगी, बिकॉज शी हैड 400, 400 से ऊपर मे बी वैल्यूज मेरे को मिल जाएगी, एंड दिस हैज़ टू बी लॉरा, एंड लॉरा का कितना है यहाँ पे 500, राइट? फिर ये पार्ट आपका एक्चुअली में फिक्स हो जाता है। अच्छा, ये वाला केस अगर नोटिस करो तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल चुका है, तो इसी को थोड़ा आगे लेके बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं कि बाकी लोगों को हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके ना, अब एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे काफ़ी वैल्यूज़ तो हम लिख चुके हैं इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, तो जितने वैल्यूज़ आप यूज़ कर चुके हो ना, मे बी उसको थोड़ा सा हम टिक कर लेते हैं, थोड़ा नोटिस करने में आसान होगा। तो जैसे सारा, दोनों ही केस में एक्चुअली सारा का हमने यहाँ पे लिख लिया है, 500 इज डन। देन पेनी, लेनर्ड एंड बैरी, सो पेनी, लेनर्ड एंड बैरी, दिस डन। फिर बर्नाडेट, प्रिया एंड लॉरा, बर्नाडेट, प्रिया एंड लॉरा, सो बर्नाडेट, प्रिया एंड लॉरा, बर्नाडेट, प्रिया एंड लॉरा, ये सारी वैल्यूज़ तो आपका गारंटी से हमने लिख लिया है। तो अब हम थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। अब जैसे इस वाले केस से ही हम थोड़ा फोकस करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर नोटिस करो तो बर्नाडेट है, राइट? बर्नाडेट का कितना है 400, तो यहाँ पे इसने क्या बोला था, यहाँ पे जो भी वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए आपकी 400 से ज़्यादा आनी चाहिए। अब 400 से ज़्यादा वैल्यू आपकी क्या आ सकती है? तो अगर मैं चेक करूँ 400 से ज़्यादा वैल्यू इस पूरे टेबल में क्या है, आइदर इट इज़ 480, मतलब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, बिकॉज ये तो रिमेनिंग है ना, 400 से ऊपर क्या आ सकता है, बिकॉज एक 480 बचा हुआ है, 500 तो हमने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है। तो अगर यहाँ पे 400 से ऊपर कुछ आना है तो फिर 480 ही आना पड़ेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, येस दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 400 से ऊपर कितना आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 480 आना पड़ेगा। अब 480 अगर आप नोटिस करो तो 480 रिमेनिंग किसका है, लेनर्ड का आप 480 लिख चुके हो, दिस हैज़ टू बी शेल्डन, एंड शेल्डन अगर ये है तो फिर ये पर्सन कौन हो जाएगा, एमली हो जाएगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू,
राइट 400 से ऊपर ये 480, दैट हैज टू बी शेल्डन, दैट इज द ओनली पर्सन। शेल्डन के राइट में क्या आ जाएगी, एमिली आ जाएगी। अब इससे मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अभी जस्ट एक स्टेटमेंट पढ़ा था और ये मेरे को क्लिक कर रहा है। क्या क्लिक कर रहा है कि अगर मैं शेल्डन के बाद में यहाँ पे एमिली लिख देता हूँ, राइट ये वाला केस, बिकॉज ये फिक्स होना पड़ेगा शेल्डन एंड एमिली, तो फिर जो भी रिमेनिंग पर्सन है वो इस थर्ड रो में आएंगे। जो भी रिमेनिंग में एक्चुअली में एमी और जेनी दोनों बचे हैं। एक्चुअली एमी जेनी एंड एक लेजली बचेगी। शेल्डन और एमिली को लिखने के बाद एमी, जेनी और लेजली बचेगी, तो ये तीनों इसी सेम रो में आने पड़ेंगे। बट यही यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा सेवेंथ स्टेटमेंट को। एमी डिड नॉट सिट इन द सेम कॉलम और द सेम रो एज जेनी, फिर तो ये तीनों साथ में आने पड़ेंगे। दैट सिंपली मीन्स कि ये वाला केस ही एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला केस एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स आई कैन सेफली रिमूव दिस एंटायर केस। ये पूरा केस आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं फिर से वही काम कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू वेरी क्लियरली। तो मैं ये पूरा ही पॉसिबिलिटीज हटा देता हूँ। मे बी इसी वाले केस को रहने देते हैं, इस वाले केस को रहने देते हैं। अगर मेरे को इसके बाद भी और कोई पॉसिबिलिटी मिली, कोई केस मिला, तो मैं उसी के बाद इस केस को यूज़ कर ले जाऊँगा। तो ये वाला तो रहने ही देते थे। इसमें क्या पार्ट फिक्स है दोनों केसेस में, सारा, यस दिस इज सारा 500, ये ठीक था। पेनी, लेनर्ड एंड मैरी, दैट वाज फाइन। इस वाले में फिर हम थर्ड वाले रो में डालेंगे बर्नेट वगैरह को, तो ये सब हटा देते हैं। राइट, दिस इज अ वेरी लॉन्ग सेट, a lot of case work has to be done। तो यहाँ पे 400, 500 और 500 आएगा। तो एग्जैक्टली बस ये सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बर्नाडेट है, यहाँ पे बर्नाडेट, यहाँ पे प्रिया और यहाँ पे लॉरा। राइट, और प्रिया का कितना है 500, ये भी कितना है 500। राइट, अब यहाँ तक की कहानी एक्चुअली में सब फिक्स्ड है। अब यहाँ से बस थोड़ा सा मे बी और बचा हुआ है। इसके बाद ये क्रैक हो जाएगा कि यहाँ पे बाकी लोग कहाँ पे किस पोजीशन पे बैठ गए हैं। ठीक है, और करंट सिचुएशन में ये 7 आपको लोग बैठे हुए मिल रहे हैं। अब हम थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं कि कौन कहाँ पे आ सकता है। ओके, अब सबसे पहली चीज़ अगर मैं नोटिस करूं, सबसे पहली चीज़ वही जो अभी मेरे को यहाँ पे क्लियर किया था कि क्या कौन, ये लास्ट वाला जो सेकंड केस था वो पॉसिबल नहीं था। तो शेल्डन एंड एमिली, अब शेल्डन एंड एमिली समझना, शेल्डन एंड एमिली फिर यहाँ पे नहीं आ सकते। ये दोनों केस में ही आप बोल सकते हो शेल्डन कैन नॉट बी हियर। राइट, शेल्डन यहाँ पे वैसे भी नहीं हो सकता था, शेल्डन यहाँ नहीं हो सकता, बिकॉज शेल्डन के राइट में किसको जाना पड़ेगा, एमिली। तो प्रॉब्लम फिर रिपीट हो जाएगी, शेल्डन एमिली पूरे आ जाएंगे। दैट मीन्स बचे हुए 3 लोगों को इस लास्ट वाले रो में होना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स शेल्डन एंड ये जो एमिली है, दे विल हैव टू कम इन दिस लास्ट वाला रो। नाउ शेल्डन के लिए अगर हम पोजीशन देखना स्टार्ट करें, शेल्डन यहाँ तो हो नहीं सकता, राइट, शेल्डन यहाँ नहीं हो सकता। तो शेल्डन बाकी यहाँ पे भी हो सकता है, बिकॉज फिर यहाँ पे एमिली आएगी, या फिर शेल्डन मेरा यहाँ पे हो सकता है, एमिली इधर भी कहीं पे भी आ सकती है। राइट, लेकिन अगर हम थोड़ा सोचना स्टार्ट करें, मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, देखो शेल्डन इधर तो नहीं है, ये तो गारंटीड है। तो मतलब यहाँ पे 480 नहीं है, राइट, यहाँ पे डेफिनेटली 480 नहीं है, 500 भी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग वैल्यूज़ है, 480 को अगर आप हटा दोगे तो 400 और 250 ही तो है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, 400 एंड 250 ही है आपके पास। तो यहाँ पे 250 नहीं हो सकता, बिकॉज 250 इज नॉट ग्रेटर दैन एनीथिंग, क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा आना चाहिए। तो 250 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या है फिर आपका 400 वाला वैल्यू है। मे बी आई डोंट नीड द सेकेंड केस आफ्टर ऑल। तो यहाँ पे 400 ही आएगा, और 400 किससे ग्रेटर है, 480 से तो ग्रेटर नहीं हो सकता। और वैसे भी यहाँ पे शेल्डन नहीं आ सकता, बिकॉज शेल्डन के राइट में एमिली आना है। तो 400 अगर यहाँ पे है, 400 विल डेफिनेटली बी ग्रेटर दैन 250। तो 250 यहाँ पे है, एंड बिकॉज ये 250 है तो ये फिर फिक्स हो जाएगी, दिस हैज़ टू बी दैट एमी, दैट चाइल्ड। राइट, ये अपना 250 हो गया। एंड बिकॉज ये पोजीशन आपकी ब्लॉक हो गई, और हमने अभी जस्ट कंक्लूड किया था कि शेल्डन एंड एमिली इसी रो में आएंगे, तो शेल्डन कैन नॉट बी देयर, शेल्डन फिर आपका यहाँ पे आएगा। तो शेल्डन ये है, दिस हैज़ टू बी शेल्डन, एंड दिस हैज़ टू बी 480 शेल्डन का। एमिली फिर ये पोजीशन ले लेगी, और एमिली का कितना हो जाएगा 400। अब मेरी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बिकॉज देखो 400 मेरे पास शेल्डन एंड एमिली का भी हो गया, शेल्डन इज डन।
Emily is done. तो मेरे पास जो 3 बचे हैं एक्चुअली में Emmy is also done. तो 400 और 400 ही बचा है. तो this is 400, this is 400, but Emmy के सेम कॉलम में कौन नहीं आएगी? जेनी नहीं आएगी. सो दिस पर्सन हैज़ टू बी जेनी. एंड एक पर्सन बच गई है, कौन सी? लेस्ली, ये वाला. तो लेस्ली, क्योंकि जेनी हो गया तो लेस्ली आपका यहाँ पे है. अ ब्यूटिफुल सेट, अ लॉट ऑफ लॉजिक टू दिस, राइट. मे बी यू कुड हैव अ डिफरेंट ऑर्डर. आपको किसी और ऑर्डर में अगर यहाँ पे आंसर पे पहुँचो ना, लेट मी नो, राइट. आई टुक सिंपल रूट जिस तरीके से हमने पढ़ना स्टार्ट करा है, एंड आई मेड अ लॉट ऑफ केसेस. दिस वॉज वेरी लेंदी ऑब्वियसली, बिकॉज समझाने के लिए थोड़ा सा क्लियर करना पड़ रहा था मेरे को. आई वुड हैव ड्रॉन दिस वेरी क्विकली, मतलब इट वुड हैव एनी वेज टेकन मी अ लॉट ऑफ टाइम इफ आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स. Okay, let's look at the problems. Who among the following was sitting in the middle of the fourth row? Middle of the fourth row, so it has to be Emily. Third option. Now options are not there, so we'll write this. So what is the sum of the price of tickets of all the persons sitting in the first row? So first row में 500, 400 and 400 सब यूनिक ही है. तो कितना हो जाएगा आपका? 1300. So this has to be 1300. Then who was sitting to the immediate right of Jenny? Immediate right of Jenny. Jenny is this. Immediate right of Jenny is Leslie. So this has to be Leslie. Right? And who was sitting just behind Bernadette? Just behind Bernadette has to be Sheldon. Right. I hope this set is clear to everyone. I would rate this a difficult set because there are a lot of conditions, a lot of casework has to be done in this set. So definitely a difficult for me. You tell me how would you rate this set. Again, if you have any doubts, just let me know in the comments.